ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ 20 برس بعد امریکی فوج کا بگرام کے فضائی اڈے سے انخلا۔ افغانستان میں تقریباً 20 برس بعد امریکی فوج بگرام کے فضائی اڈے سے کوچ کر گئی۔ یہ فوجی اڈہ طالبان کی حکومت گرانے اور القاعدہ تنظیم کے ارکان کے تعاقب کے حوالے سے امریکہ کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ بگرام کا ہوائی اڈہ مکمل طور پر افغان سیکورٹی اور نیشنل ڈیفنس فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے کمانڈر ان چیف جنرل اوسٹن میلر بقیہ فورسز کے تحفظ کے لیے اب بھی تمام صلاحیتیں اور اختیارات رکھتے ہیں۔ یہ انخلا اس بات کا واضح ترین اشارہ ہے کہ افغانستان سے آخری امریکی فوجی کے کوچ کا وقت قریب ہے۔ رواں سال اپریل کے وسط میں اعلان کیا گیا تھا کہ امریکہ اپنی دائمی جنگ کو ختم کر کے امریکی فوجی اور نیٹو میں اس کے اتحادوں کو واپس بھی دے گا۔ ان اہلکاروں کی تعداد تقریباً 7,000 ہے۔ امریکہ نے سیکورٹی اندیشوں کے سبب افغانستان میں موجود اپنے آخری فوجی کے کوچ کا وقت متعین کرنے سے گریز کیا، تاہم کابل میں حامد کرزائی بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کے سلسلے میں مذاکرات جاری ہیں۔ اس وقت ترک اور امریکی اہلکار مذکورہ ہوائی اڈے کی سیکورٹی سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہوائی اڈے کے تحفظ کے لیے ترکی اور افغان حکومت کے درمیان نئے سمجھوتے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کی سیکورٹی کے لیے تقریباً 650 امریکی فوجی ہوں گے۔ ایک زمانے میں بگرام کے فضائی اڈے پر 1,00,000 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو گزرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بگرام کا فضائی اڈہ افغان دارالحکومت کابل کے شمال میں 1 گھنٹے کی دوری پر واقع ہے۔ امریکہ نے پاکستان اور ترکی کو دیا جھٹکا، بچہ سپاہی بھرتی والے ممالک کی فہرست میں کیا شامل۔ امریکہ نے پاکستان اور ترکی کو چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ (CSPA) کی فہرست میں شامل کر لیا، جس کے نتیجے میں فہرست میں شامل ممالک کی فوجی امداد اور امن مشن کے پروگرام میں شرکت پر سخت پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ یہ نامزدگی امریکہ کی سالانہ محکمہ جاتی ٹریفک ان پرزنس (TIP) رپورٹ میں شامل ہے، جو انسانی اسمگلنگ کو روکنے کی کوششوں کے حساب سے ممالک کو مختلف درجہ بندی دیتی ہے۔ امریکہ کی چائلڈ سولجرز پریونشن ایکٹ ان غیر ملکی حکومتوں کی فہرست کی سالانہ TIP رپورٹ میں اشاعت کا تقاضا کرتی ہے، جنہوں نے گزشتہ برس 1 اپریل 2020 سے 31 مارچ 2021 تک کم عمر فوجیوں کو بھرتی یا استعمال کیا ہو۔ اس سلسلے میں جن اداروں کا جائزہ لیا جاتا ہے ان میں مسلح افواج، پولیس، دیگر سیکورٹی فورسز اور حکومت کے حمایت یافتہ مسلح گروہ شامل ہیں۔ 2021 کی CSP فہرست میں افغانستان، برما، جمہوریہ کانگو، ایران، عراق، لیبیا، مالی، نائجیریا، پاکستان، صومالیہ، جنوبی سوڈان، شام، ترکی، وینزویلا اور یمن کی حکومتیں شامل ہیں۔ ان میں سے 3 ممالک یعنی کانگو، صومالیہ اور یمن 2010 سے ہر CSPA فہرست کا حصہ بنتے آ رہے ہیں، جب اس نامزدگی کا آغاز ہوا تھا۔ علاوہ ازیں دیگر 9 ممالک یعنی افغانستان، ایران، عراق، لیبیا، مالی، برما، نائجیریا، جنوبی سوڈان اور شام گزشتہ 10 برسوں میں 1 سے زائد مرتبہ اس فہرست کا حصہ رہے ہیں۔ اکھل گوگوئی رہا، BJP کو منہ کی کھانی پڑی۔ شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت کرنے پر غداری کے الزام میں گرفتار کانگریسی ممبر اسمبلی NIA کی عدالت سے بری۔ شیو ساگر سے MLA اکھل گوگوئی کو جمعرات کو 1.5 سال بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ رہائی کے بعد اکھل گوگوئی نے کہا کہ میں CAA کی تحریک میں سب سے پہلے شہید سیم اسٹیفن کے اہل خانہ سے ملنے جاؤں گا۔ اس کے بعد میں
कर्षिक मुक्ति संग्राम समिति के दफ्तर जाऊंगा और फिर अपनी पार्टी रायजोर दल के ऑफिस पहुंचना है। इसके बाद मैं अपने हल्का असेंबली का दौरा करूंगा। अदालत के फैसले को लेकर गोगोई ने कहा कि इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हुकूमत की जानिब से इतने दबाव के बाद भी अदालत इस तरह का फैसला देगी। इससे पता चलता है कि अदलिया आज भी आज़ाद है और लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। एक खुसूसी NIA अदालत ने उन्हें और उनके 3 साथियों को दिसंबर 2019 में आसाम में शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक में मुबैना रोल के लिए UAPA के तहत तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। गोगोई और उनके साथी UAPA 1967 के तहत 2 मामलों में मुलजिम थे। आज़ाद MLA और उनके 2 दीगर साथियों को पहले मामले में 22 जून को इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया था। NIA के खुसूसी जज प्रांजल दास ने चांद मारी मामले में गोगोई और उनके 3 साथियों धरजिया कोनूर, मानस कोनूर और बेटू सोनेदाल पर इल्ज़ाम तय नहीं किए गए। इस मामले में उन पर माउन नवाजों से रिश्ता रखने का इल्ज़ाम था। NIA जज प्रांजल दास ने 120 सफ़ात के फैसले में सेडिशन पर कुछ तबसरे किए गए। कुछ उमूमी मुशाहिदात के ज़ैली उन्वान के तहत जस्टिस दास ने कहा, हालांकि हमारी कानून की किताब में सेडिशन का कानून जारी है, इसकी नौ आबादियाती मीरास को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने तारा सिंह बनाम स्टेट के 1950 के एक मामले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान अब एक खुद मुख्तार जमहूरी रियासत है। सरकारें जा सकती हैं और रियासत की बुनियाद को मुतासिर किए बिना जाने को मजबूर हो सकती हैं। गैर मुल्की इक़्तिदार के दौरान ज़रूरी समझा जाने वाला सेडिशन का कानून बदले हुए हालात में बेमानी हो गया है। मकतूबे रियाज जद्दा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान ट्रेन सर्विस की एक अरसे से शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। रियाज से हर हफ्ता हज़ारों लोग उम्रा और ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा जाते हैं और ये लोग कार या बस के ज़रिए ये सफ़र तय करते हैं। इस लंबे सफ़र में बड़ा वक्त लगता है और लोग थक भी जाते हैं। हुकूमत के हालिया ऐलान ने अहले रियाज को बड़ी हद तक राहत बख्शी है। सऊदी वज़ीर नक़ल व हमलो लॉजिस्टिक खिदमात एजेंसीज सालेह अल जासिर ने कहा है कि ममलिकत में कई अहम ट्रांसपोर्ट मंसूबे नाफिज किए जाएंगे। मुजव्वज़ा मंसूबों में जद्दा और रियाज के दरमियान रेलवे लाइन, मशरक़ी इलाके को मगरबी इलाके से जोड़ने वाली रेलवे लाइन और नई कौमी फ़ज़ाई कंपनी का क़याम काबिल ज़िक्र है। वसीला उर्दू TV की खुसूसी पेशकश कामयाब NRIs की कहानियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम जहां और भी हैं। नाज़रीन किराम, हमारे बुज़ुर्गों ने हज़ारों मक़ोले और ज़रबुल मसल छोड़े हैं जिनमें एक ज़र, ज़मीन और ज़न से मुताल्लिक़ है, जिसमें बताया गया है कि ये चीज़ें इंसान को उरूज बख्शती हैं और यही इंसान की तबाही का बायस भी बनती है। जहाँ और भी हैं कि इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हम जिस कामयाब NRI की कहानी पेश करने जा रहे हैं वो हैं जनाब मोहम्मद अब्दुल रसूल उर्फ सरवर। ऐसा लगता है कि मुतज़क्किरा ज़रबुल मसल में कही गई तीनों चीज़ें अब्दुल रसूल साहब के हक़ में बख्तावर साबित हुई हैं। रसूल साहब ने 1991 से 2019 तक सऊदी अरब में बड़ी कंपनियों में बहैसियत फाइनेंस मैनेजर काम किया और 28 साल के इस अरसे में बड़े मंसूबाबंद तरीक़े से अपनी बचत को ज़मीनों की ख़रीदी में मशगूल किया, यानी उन्होंने अपने ज़र को ज़मीन में तब्दील किया और एक मुख्तसर अरसे के बाद ये ज़मीनें इनके लिए सोना उगलने लगी। और जब देश की धरती सोना उगलने लगी तो रसूल साहब अपने वतन हैदराबाद लौट आए और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी शुरू की, जिसमें रिहायशी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की तामीर, पेट्रोल स्टेशंस,
फूड बिजनेस वगैरह शामिल हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स की निगरानी रसूल साहब और उनके फर्जंद अब्दुल रज़्ज़ाक़ करते हैं। रसूल साहब ने बड़े कठिन रास्तों से गुज़रकर राहतें पाई हैं। बकौल बशीर बद्र, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कम उम्री में वालिदैन के साये से महरूम होने के बाद रसूल साहब ने गुर्बत और मसाइब को बड़े क़रीब से देखा। उन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले से अपने आप को खड़ा किया। ट्यूशन और जुज़वक्ती मुलाजिमतें की। वसाइल की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। कॉमर्स में मास्टर्स किया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। मुख्तलिफ इदारों में जुज़वक्ती तौर पर ऑडिट एंड अकाउंट्स का काम देखते रहे। फिर उन्होंने हैदराबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की खिदमत देने के लिए रसूल एंड एसोसिएट्स के नाम से एक फर्म कायम की। हज़रात, 1980 की दहाई में खलीजी ममालिक में रोज़गार हासिल करने का रुझान बड़ा आम था। रसूल साहब ने भी 1991 में सऊदी अरब का रुख किया। आपने 28 साल में मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों बशमूल बिल्लादीन ग्रुप में बहैसियत फाइनेंस मैनेजर काम किया। 28 साल के इस तवील अरसे में उन्होंने खासा पैसा कमाया। खलीजी ममालिक में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, मगर रसूल साहब ने सलीक़े से खर्च किया और बचत की और दानिशमंदी से इस पैसे की सरमायाकारी की। रसूल साहब की उर्फियत सरवर है। वो नाम के सही बादशाह हैं, लिहाजा इनका रिश्ता हैदराबाद दक्कन के शाही ख़ानदान में तय पाया और 1989 में आप साहबजादी सकीना से रिश्ते अज़दवाज में बंधे। रसूल साहब के 3 होनहार बच्चे हैं। बड़े फर्जंद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान MBBS MD और दूसरे फर्जंद अब्दुल रज़्ज़ाक़ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो फूड हेवन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं। आपकी दुख्तर अनास रसूल MBBS में ज़ेर तालीम हैं। रसूल साहब की बहू राबिया ख़ान भी डॉक्टर हैं, जिन्होंने पैथोलॉजी में MD किया है। रसूल साहब के मुताबिक उनके बच्चों की नशोनुमा, तालीम व तरबियत और दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा करने में उनकी शरीक हयात सकीना बेगम, जो ख़ुद भी एक आला तालीमी याफ्ता खातून हैं, का अहम किरदार है। इस तरह ज़मीन रसूल साहब की कामयाबियों के ज़ीने साबित हुए। रसूल साहब ने अपनी कंपनी फूड हेवन के तहत 3 आला मियारी रेस्टोरेंट्स कायम किए हैं, जिनमें रिवायत रेस्टोरेंट पंजागुट्टा और जुबली हिल्स और बड़े मियाँ कबाब बेंगलुरु शामिल है। रसूल साहब अनक़रीब बड़े पैमाने पर तालीमी इदारे क़ायम करने का इरादा रखते हैं। रसूल साहब मिजाजन नरम दमे गुफ्तगू हैं, मगर गर्म दमे जुस्तजू। तभी तो एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट बैक वक्त कामयाबी से चला रहे हैं। मेहनत चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी, रसूल साहब दोनों महाज पर कामयाब हैं। वो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर थे और वो मिस्टर अनवारुल्लूम और मिस्टर अग्रवाल कॉलेज भी रहे, और अब बिज़नेस के अखाड़े में चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला कर रहे हैं। रसूल साहब जब तक रियाज में रहे, वो शख्सियत साजी की तंजीम टोस्ट मास्टर्स क्लब के फ़ाल रुकन रहे, और ख़ास बात ये रही कि वो बैक वक्त अंग्रेज़ी और उर्दू क्लब्स के फ़ाल रुकन रहे। बहरहाल रसूल साहब एक हमाजहत सलाहियतों के मालिक और NRIs के लिए एक काबिल रश्क शख्सियत हैं। शुक्रिया।